Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about scalar control or constant V by F. It means voltage upon frequency control of induction motor. Okay, we all know about V by F ratio, voltage and frequency ratio in induction motor, particularly. Okay, now there are various topics which we will cover in this chapter. Now, this is your total chapters contain review of three-phase voltage source inverter, generation of three-phase PWM signal, sinusoidal modulation, space vector theory, conventional space vector modulation, constant V by F control of induction motor, steady state performance analysis based on equine circuit, space droop with loading, sleep regulation. This is total what your chapters contain. Okay, step by step we cover all these topics in detail. And other thing is that we already study some topics like here you can see that three-phase voltage source inverter as well as generation of three-phase PWM signal, okay, which is already covering your fourth semester power electronics subject. But it doesn't mean we will not cover these topics. We will also cover this whole or some topics which we see in this chapter, as well as we were already studying the power electronics subject. Okay, so don't worry about that. Now we will first of all we start from this speed control of induction motor. Why we require speed control of induction motor? Because we require some exact speed, like we require 1500 rpm, 1400 rpm, or any other speed. Okay, depending upon your requirement you can vary the induction motor speed, okay, or rotor speed. Here we can see that speed control of induction motor having two control mechanism. What are they? Scalar control and vector control. What is scalar control? If you want to control your speed by using frequency control method, okay, it is also called as what? Scalar control method. There are two control method. What are they? Stator voltage control method. It means what? Ki you given the voltage, supply voltage, okay, basically we what we do in induction motor, we provide some electrical energy and we got some output in the mechanical energy. Okay, in this first method, what we do, this first method, we control the voltage, and by using that we control the mainly rotor speed. It means our rotational speed. After then, in this what we do, constant V by F control method. It means what? We uh, maintain the V by F value. Okay, we maintain the what? V by F value. So in that we have to do some increment or decrement of frequency. Okay, if you change the this ratio, you have to you have to some, what we can say, if v1 is equal to what, something, some voltage, frequency is equal to some frequency. Okay, you have to increment or decrement in same amount, same rating. Okay, because you have to what, you have to maintain the ratio, v by f ratio. Other is what? Vector field control. Vector field control is, it means what? It is also called as field oriented control. In that word, you have to control the flux. It means magnetic field and torque required to rotate the mainly rotor speed. Rotor. Okay, you have to control the phi and t, so that you can control the speed of the induction motor. Okay,
In that there are two methods: direct and indirect control method. Okay. Now, what are the types of inverter? Basically, we have two types: voltage control inverter and current source inverter. Voltage source inverter, current source inverter. We already study the voltage source inverter and current source inverter. In that, we already see the classification or comparison of voltage source inverter and current source inverter. In that, in voltage source inverter, the voltage is constant, current source inverter is current is constant. In that, capacitor is used for constant voltage. In this, the inductor is used for constant current value. Okay. In this, the voltage is not depend upon your load. In that, current is not depend upon your load. In this, vo- uh, in this current value, okay, load current is only depend on your what load. And in that, voltage is totally depend on your mainly load. Okay. There's a some difference which we cover in this, which were just cover in this slide. Okay. After the square wave PWM inverter, basically we can say that if we provide the some input, okay, in that, sorry, in this, we will provide this as a supply as a DC voltage. Okay. In this we provide DC voltage. In this we provide DC current source. Okay. So in this, what happen, if we convert the DC value into AC value, it means we perform the inverter operation. Okay. In that, what happen, we we want ideal sinusoidal voltage, but it doesn't mean we we will got that sinusoidal voltage in every inverters or in every converters. Okay. We uh, we can get this square wave inverter, quasi square wave inverters, PW inverters. Okay. As well as we ideally get the sine wave inverter. Okay. If we got this, we have no problem. But if we got this kind of waveform, so we cannot directly given to the load. Okay. So what is the solution? We have to use some filters, like low pass filter, high pass filter, any other filters. Okay. So that the square wave inverters, which contain some harmonics, will be removed by that filters. Okay. And we got the purely sinusoidal voltage, and after then we will give the AC load. Okay. We cannot directly give this kind of waveform to our normal AC loads. Okay. We already know that our total power system, we 70 percentage of we use the AC load, not DC load. Okay. So this is very important for us. Okay, and after then we will cover the three-phase square wave inverter. Okay, in that there are two types: 180-degree conduction mode and 120-degree conduction mode. Okay, you can see that this is main circuit of three-phase bridge inverter. In that, we use the DC supply voltage. This is capacitor. Okay. It is used for constant DC voltage to our main circuit. Okay. T1, T3, T5, T4, T6 and T2. Okay. 135462. Okay. You have to maintain this kind of numbering. Okay. So that the main circuit will not be changed. Okay. If you draw this circuit, you will definitely draw this in this only this type of numbers. Okay. You cannot write 1 2 3 4 5 6. Okay. This is the right manner to draw the circuit, and this is the right numbers from for the main thyristor. Okay. In that, this is T1 and T4. Okay. These two thyristor are what? Okay. In the phase leg. Okay. If we
if we can say that T1 and T4 are thiester, T3 and T6 are thiester, T5 and T2 are thiester. Okay, this is your phase leg. Okay, we highlighted this first what we highlighted this first thyristor. Okay, in that we can say that if the time delay between the T1 and T4 is 180 degree, T3 and T6 the phase delay is 180 degree, T5 and T2 it is say 180 degree. But what about T1 and T3? Okay, T3 and T5, okay, T4 and T6, and T6 and T2. Okay, the total time delay between these two thyristor are 120, these two thyristor are 120 degree. Okay, and we connect the AC load to this terminal. Okay, now we will study about the step 1, step 2, step 3, step 5, 6, up to 6 step. Okay, and then what will we study? We study about how will we will got the what line to line voltage and phase voltage. Okay, now if you consider the 180 degree, there are three switches will be simultaneously on. ओके, यानी कि आपका तीन स्विच आपका क्या होगा, एक साथ ऑन होगा. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 6 और आपका 5 नंबर का स्विच ऑन हुआ है. तो उसकी तरह से आपका क्या, आपका मेनली क्या होगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ओके, ए बी एंड सी. ओके, वो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका इस तरह इस मैनर के अंदर आपको क्या मिल रहा है, लोड का कनेक्शन आपको मिल रहा है. ये स्टार कनेक्टेड लोड है, वो आप सभी को पता होगा. यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, करंट यहाँ से 1 के साथ जाके ए के थ्रू ओ में जाएगा. दूसरा, आपका यहाँ पे करंट जा नहीं सकता, तो आगे करंट 5 के थ्रू आपका कहाँ पे जाएगा, सी टू ओ में जाएगा. यानी ए टू और सी टू ओ तो में करंट जा रहा है. ओके, लेकिन उसके अंदर से जो भी आपका I1 प्लस I2 करंट कंसिडर कर लो, तो I1 एंड I2 करंट जो भी है वो दोनों ऐड होके कहाँ पे जाएंगे, O टू B में जाएंगे. यानी करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना. ओके, in that A to O current is flow, C to O current is flow, but in this branch O to B current is flowing. So we can say that ये आपका जो भी होगा वो आपका क्या गया, रेफरेंस पोलैरिटी के अंदर आपका फ्लो होगा. यहाँ पे भी आपका रेफरेंस पोलैरिटी के अंदर आपका फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, रिवर्स आपका डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो होगा. ओके, यानी चलो मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है. ओके, यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव ही होगा. ओके, नेगेटिव यहाँ पे आएगा सिर्फ न्यूट्रल पॉइंट, ऐसा कंसिडर करके. तो उस कंडीशन में आपका क्या करंट फ्लो होना चाहिए, बी टू ओ करंट फ्लो होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ही ड्रॉ की गई है. तो अगर मान लो कि एक आप सप्लाई वोल्टेज ds दे रहे हो, ओके, तीन लोड है, तो आपको बैलेंस कंडीशन में आपका जो भी वोल्टेज के अक्रॉस में लोड वोल्टेज मिलना चाहिए, लोड के अक्रॉस में वोल्टेज मिलना चाहिए, वो कितना मिलेगा, Vs/3 मिलेगा ना, राइट. सो फॉर दैट, तो आपका यहाँ पे आपका Vs/3 मिला है एक लोड को, दूसरे के लिए भी आपका Vs/3 मिला, क्योंकि यहाँ पे आपका सेम अमाउंट में करंट जा रहा है. अगर यहाँ पे 10 एम्पियर है तो यहाँ पे भी 10 एम्पियर ही करंट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका दोनों का ऐड होके जा रहा है. तो आप क्या लिख सकते हो, 2Vs/3. ओके, इसलिए आपका Va0 Vc0 आपका क्या मिला, Vs/3 मिला. Vb0 एंड V0 भी आपको क्या मिला, -2Vs/3 मिला. ठीक है. अब लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आप जिस तरह जैसे आपको Va0 Vb0 Vc0 के वैल्यू मिली, उसी तरह आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप उसको ड्रॉ करते हो. ठीक है. अब दूसरे के लिए आपका क्या हो रहा है कि अगर आप लाइन टू लाइन वोल्टेज ड्रॉ करना चाहते हो, तो VAB क्या होगा, Va0 माइनस Vb0 मिलेगा. चलो, Va0 माइनस Vb0, Vs/3 माइनस, यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो Vs/3 प्लस 2Vs/3 दोनों ऐड होके क्या होंगे,
3 Vs/3 आएगा, 3 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो Vs बचेगा ना। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला Vs। ओके, उसी तरह आप क्या फाइंड आउट कर लो, VB0 एंड VC0 फाइंड आउट कर लो। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो भी आपका ऑलरेडी क्या बोल रहे हैं, VBC जो भी आपका होगा उसी तरह से आपको -Vs मिलेगा। तीसरे में आपको दोनों की वैल्यू सेम मिल जाएगी और वो 0 हो जाएगा। उसी तरह आप क्या करो, जो भी स्टेप नंबर 2 है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इंडिकेशन दिया है। ऐसे करते 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 आपको क्या मिलता जाएगा, ऐसे ही आप स्टेप 4 स्टेप 6 जितना भी आप करते हो ना। ओके, उसके बाद यहाँ पे इस मैनर में आपको क्या मिलेगा, वेवफॉर्म मिलेगा। अब मैंने क्या बोला था कि सेम फेज लेग के अंदर जो भी आपके थायरिस्टो होते हैं ना, उसमें 180 डिग्री का क्या होता है, डिले होता है। 180 डिग्री का डिले इन द सेंस फॉर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो समझो, कि अगर आपका जीरो से कोई एक थायरिस्टो ऑन होना स्टार्ट हुआ तो वो 180 डिग्री तक पहुंचा। ओके, अब जीरो को रेफरेंस में लो और उसके बाद सोचो कि अगर आपका T1 पहले 180 डिग्री के लिए ऑन होता है, तो T4 आपका क्या ऑन होना चाहिए, कि जीरो से रेफरेंस लेके 180 डिग्री के बाद वो ऑन हो रहा है। या इस तरह भी समझ सकते हो कि T1 पहले ऑन होगा, उसके बाद T4 ऑन होगा, अगेन T1 ऑन होगा, T4 ऑन होगा। अगर बात करते हैं कि T1 के बाद 120 डिग्री के बाद आपका क्या ऑन हो रहा था, T3 ऑन हो रहा था। तो T3 ऑन होना यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ, लेकिन वो जो स्टार्ट होगा तो वो कितने डिग्री तक ऑन होगा, क्योंकि सॉरी 180 डिग्री तक ऑन होगा, यानी ये इतना आप क्या क्या कंसिडर कर सकते हो, 180 डिग्री है। बट अगर आप उसके बाद की कंडीशन सोचते हो ना, तो पहले क्या था, यहाँ पे 1 3 5 4 6 एंड 2 था। सो यहाँ पे 1 और 4 किसके लिए हुआ, ओके, पहले 1 ऑन हो गया, उसके बाद 4 ऑन हो गया। ओके, उसके बाद अगेन 1 ऑन होगा, उसके बाद अगेन 4 ऑन होगा। लेकिन अगर आप 1 के बाजू में क्या 3 है, तो 1 जब 180 डिग्री के लिए ऑन हो गया तो जीरो को रेफरेंस में लेके अगेन आप क्या करोगे कि 1 3 के बीच में तो 120 डिग्री है ना, तो यहाँ से T1 जब तक यहाँ पे 120 डिग्री तक पहुंचा, उसके बाद आपका क्या ऑन हो जाएगा, 3 वाला ऑन हो जाएगा। लेकिन 3 कब तक ऑन रहेगा, 180 डिग्री तक। ओके, और 3 180 डिग्री तक ऑन हो गया, तो उसके बाद आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे जो भी आपका 6 नंबर का है वो आप कंसिडर करो, तो T6 180 डिग्री के लिए ऑन होगा, अगेन क्या होगा, T3 ऑन होगा। ओके, यानी 3 6 3 6 ऐसा करते करते जाएगा। तो अगर यहाँ पे 3 ऑन हो रहा है तो उसके पहले क्या ऑन होगा, 6 ऑन होगा, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा गया। अगेन क्या करो, 3 को ऐसे यहाँ पे कंसिडर करो, तो 3 जब ऑन हो रहा है उसके 120 डिग्री के बाद आपका क्या ऑन होना चाहिए, बाजू वाला, यहाँ पे जो क्या नंबर है, 5 नंबर है, तो यहाँ पे 5 नंबर का जो भी थाइस्ट है वो ऑन हो गया। ओके, अब 5 नंबर के बाद यहाँ पे नीचे क्या है, जो 180 डिग्री पर ऑन होता है, ओके, T2 है, तो यहाँ पे इतने पोर्शन के लिए आपका T5 ऑन होगा, तो उसके बाद आपका ये, यानी ये इतना पोर्शन क्या डिनोट करता है, 180 डिग्री डिनोट करता है। उसके बाद अगेन क्या होगा कि आपका 180 डिग्री के लिए T2 ऑन होगा। तो अगर यहाँ पे T5 एंड T2 जो रिपीट हो रहा है, तो उसके पहले क्या होंगे, T5 एंड T2 ही आएंगे ना। तो उसी मैनर में इतना पोर्शन आप कवर अप कर सकते हो। अगर इतना पोर्शन आपने कवर अप कर लिया, ओके, तो उसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ कि उस हिसाब से यहाँ पे हमने वेवफॉर्म जो सर्किट के ऊपर से ड्रॉ करने थे वो तो हमने कर दिए। ओके, इतना आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। दूसरी एक चीज कि अगर आपको क्या याद रखना है कि कैसे आप स्विच को ऑन करवाते हो। स्टेप 1 के अंदर हमने 3 स्विच बोला था, तो वो 3 स्विच कैसे ऑन होती है, अगर ये आपका पोर्शन बन गया होगा तो यहाँ पे आप देखो, ये T5 है, यहाँ पे आपका T6 है और यहाँ पे आपका T1 है, यानी 651 ऑन होगा। सेकंड स्टेप के लिए आपका क्या है, यहाँ पे T2 आ गया, यहाँ पे T6 है ही पहले से, ओके, T1 भी है, तो कौन से नंबर का स्विच ऑन होगा, 1 6 एंड 2। ओके, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो उसी तरह से आप क्या करते जाओ, आगे का जो भी जितना भी आपका स्विच है ना, वो आप इस तरह एज्यूम कर सकते हो, वहीं का वही है। ओके, यही मेथड है, तो ये आपका हो चुका होगा। ओके, तो इस तरह आप वेवफॉर्म को ड्रॉ कर सकते हो। दूसरी भी एक चीज कि अगर यहाँ पे आपका साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बस के अंदर है, बस समझ लो कि एवरेज की आपका साइनोसॉइडल वेवफॉर्म भी मिला ना,
ये अगर आपका 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है ना, ओके, तो उसका 120 डिग्री कहाँ पे पहुंचेगा, इतना पहुंचेगा। तो यहाँ पे आपका देखो कि 120 डिग्री के बाद आपका वेवफॉर्म क्या हो रहा है कि सेम ही मिल रहा है। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका वेवफॉर्म इस तरह का शिफ्ट हुआ है, ये देखो। ओके, अगर ये आपका 0 कंसिडर करते हो तो 120 डिग्री कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। नीचे चले जाओ, ओके, यहाँ पे पहुंचा। तो यहाँ पर भी सेम आपका क्या होगा, ये आपका सेम मैनर में आपका वेवफॉर्म लिमिट होगा। यानी इनडायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो कि लाइट और न्यूट्रल वोल्टेज के अंदर जो भी आपका वेवफॉर्म मिलता है ना, तो उसके अंदर आपका क्या मिलेगा, 120 डिग्री का डिले के बाद आपको वेवफॉर्म आपका रिपीट होता हुआ दिखेगा। ओके, ठीक है, आपको ये पता चल गया होगा। उसके बाद देखो लाइन टू लाइन वोल्टेज वेवफॉर्म। लाइन टू लाइन वोल्टेज वेवफॉर्म के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी वेवफॉर्म को ड्रॉ करने के बाद दो वेवफॉर्म का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ये वेवफॉर्म मिल जाएगा। ये वेवफॉर्म याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ये वाला पोर्शन, उसके ऊपर से स्विच का याद रख लो। स्विच का याद रख गया तो उसके ऊपर से सर्किट ड्रॉ कर दो, सर्किट के ऊपर से आप वेवफॉर्म जो भी आपको मिलते हैं वहीं का वहीं ड्रॉ कर दो। सिर्फ इतना चेक कर लेना कि आपका फाइनल एग्जाम के अंदर अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में आप जो ड्रॉ कर रहे हो कि उसमें 120 डिग्री का डिले है कि नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद तो ये आपका वेवफॉर्म आ ही जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर फॉर 120 डिग्री कंडक्शन। ओके, और 120 डिग्री कंडक्शन मोड में इतना है आपको याद रखना है कि एक साथ दो ही स्विच आपका ऑन होगा, तीसरा स्विच ऑन नहीं होगा। चलो कंसिडर कर लो कि 1 और 6 नंबर का स्विच ऑन होता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका देखो करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ए टू ओ में पहुंचा। यहाँ पे आपका देख सकते हो, तो ओ टू बी में करंट जाएगा तो यहाँ पे आपका करंट इस तरह आपका फ्लो हो सकता है। बट ओ टू सी के अंदर जाएगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होने के लिए आपका कोई भी स्विच ऑन ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो ही होगा, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, या आप बोल सकते हो ये ओपन सर्किट है, उसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आपका ओ टू बी में करंट फ्लो हुआ। ओके, यहाँ से आपका करंट कहाँ पे गया, यहाँ पे पहुंचा। ओके, वहीं का वहीं इक्वेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, यानी ए टू ओ में करंट जा रहा है, ओ टू बी में रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ओके, लोड के अंदर, इसलिए यहाँ पे आपको बी एस बाई टू कहाँ पे मिलेगा, ए टू ओ के अंदर मिलेगा, ओ टू बी के लिए आपका माइनस ऑफ बी एस बाई टू मिलेगा, जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। वीसी जीरो आपका क्या है, जीरो ही है। ऐसे करते करते क्या आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जिस तरह आपको वोल्टेज की वैल्यू मिलती है उसी तरह आप क्या करते हो कि वो ड्रॉ करते जाओ तो आपको वेवफॉर्म मिलता जाएगा। सो फाइनली आपको जो भी वेवफॉर्म मिलेगा ना उसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, पहले जो मैंने 180 डिग्री के अंदर समझा ना वहीं का वहीं आपका सेम वेवफॉर्म ड्रॉ कर दो। बट इतना याद रखना कि उसके अंदर आपको लास्ट के जो भी आपका 60 डिग्री है उसको आपको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, सेम आपका ये जो भी आपका है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा 180 डिग्री की तरह। उसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना है कि जो भी आपके लास्ट के 180 डिग्री है वो आप क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। उस कंडीशन में आपका कोई भी स्विच ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 6 नंबर का स्विच ऑन होगा, यहाँ पे आपका 1 और 2 नंबर का स्विच ऑन होगा, यहाँ पे आपका 3 और 2 नंबर का स्विच ऑन होगा, यहाँ पे आपका 3 और 4 नंबर का स्विच ऑन होगा, यहाँ पे आपका 4 और 5 नंबर का स्विच ऑन होगा, यहाँ पे आपका 5 और 6 नंबर का स्विच ऑन होगा, यहाँ पे आपका 1 और 6 नंबर का स्विच ऑन। काफ़ी इजी है। ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। ओके, बट इतना ध्यान में रखना कि ये जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो ना उस वो मेन हार्ट, जैसे ह्यूमन का मेन पार्ट क्या होता है, वो हार्ट होता है ना, उसी तरह यहाँ पे ये थियरी का मेन हार्ट क्या है, इतना ही है। ओके, इसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपका थियरी। ओके, अगर ये गलती से भी कुछ ना कुछ एक स्टेप भी गलत हो गया तो आपको थियरी पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, तो ये सही से आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, बाकी आगे के वेवफॉर्म तो इजी ही है, 1 to 6 जो भी आपके स्टेप्स हैं, ओके, जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, उसके अंदर आपको क्या आएगा वो आप इजीली उसके ऊपर से ड्रॉ कर सकते हो। लाइन टू लाइन वोल्टेज के अंदर तो आपको सिर्फ वेवफॉर्म के अंदर उसका सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि आपका वी ए भी आता है तो उसका मीनिंग क्या है कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए जीरो माइनस वी बी जीरो। काफी इजी है ना। ओके, सो टुडे वी स्टडी अबाउट व्हाट,
रिव्यू ऑफ थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एंड जनरेशन ऑफ थ्री फेज पीडब्ल्यूएम सिग्नल। ओके, काफी इजी है। ओके, ये हमने फर्स्ट जो भी था ओके उसको हमने कवर अप किया है। ओके, जैसे जैसे आपके लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये हम कवर अप करते जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।